लाइंस। कुछ चीजें जो लाइंस के बारे में हमें पता होनी चाहिए, आई विल जस्ट जॉट डाउन हियर। पहला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म क्या होगा? इट इज गिवन बाय ax plus by plus c is equal to 0, जनरल फॉर्म। ठीक है। इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c। इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो, will be x upon a plus y upon b is equal to 1। there are few more forms, slope point form etc etc। आज मैं बात करूंगा जनरल फॉर्म की। Today I'll talk about the general form. This is the general equation of the line. Okay? अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि what happens if the line passes through origin? If the line passes through origin, तो क्या होगा? चलो बताओ। अगर वो origin से पास होता है, then it will satisfy the coordinates of the origin 0, 0, yes or no? So अगर मैं यहाँ पे वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ये 0, 0 सब्स्टिट्यूट करा दूँ यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा a into 0 plus b into 0 plus c is equal to 0, which implies that c is equal to 0, yes or no? Therefore equation of the line which passes through origin, जिसमें constant term होता ही नहीं है, constant term नहीं होता है, therefore ax plus by is equal to 0। this is the equation of the straight line which passes through the origin। this is the equation of straight line passing through the origin। या तो फिर उसको इस फॉर्म में क्या मिलेगा, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यहाँ पर भी x और y 0 पुट करोगे तो c इज इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका भी कांस्टेंट टर्म 0 जाएगा, मतलब इट विल बी सिंपली y इज इक्वल टू mx। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इज दैट अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, बाकी के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हमने देखे हैं। देयर आर मेनी फॉर्मूले दैट वी हैव सीन अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक दिस फर्दर, लेट अस टेक दिस फर्दर। अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ joint equation of pair of lines। तो let us say there are two lines। let us say there are two lines। जैसे दो लाइंस है, ऐसा हम मान के चलते हैं। Is that clear? So let us say joint equation, joint, और हम उसको combined equation भी कहते हैं। This is also called as combined equation of pair of lines। combined equation of pair of lines। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? joint or combined equation of pair of lines। So let me consider here the x and y axis। let's say this is x and y axis, और वहां पे दो लाइंस है। कौन से? let me say this is one line जिसका इक्वेशन है u, जिसे मैं बोलूंगा a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। लेकिन ये a1x plus b1y इसे मैं सिंपली u बोल दूंगा। so this is u is equal to 0। is that okay? is that clear? hello, can you hear me? likewise there is one more line, जो कि इस प्रकार की है, जिसका इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। लेकिन प्यार से मैं इसे बोलूंगा v is equal to 0। is that clear? is that okay? then their joint equation, combined equation is given by u into v is equal to 0। this is their joint equation or combined equation of pair of lines। any doubts about that?
लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर नाउ, u के जगह पर मैं लिखूंगा a1x प्लस b1y, क्या आएगा ये, therefore this will become a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus a2 is equal to 0. ये होगा उसका combined equation या joint equation. Is this clear to you? और u is equal to 0 and v is equal to 0, we call them as the separate equations. हम इसे क्या कहते हैं, इसके separate equations of this pair of lines. These are the separate equations and this is called as joint or combined equation. Joint or combined equation. Let us take this further now. हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। चलिए अब हम इसका स्पेशल केस कंसिडर करेंगे। So let me call this as point number 4. Let me call this as point number 4. यही joint equation combined application of lines passing through origin. यही लाइंस अगर ओरिजिन से पास होंगे तो क्या होगा, joint equation और combined equation of lines passing through origin. देखिए यहाँ पे lines passing through origin, passing through origin. अगर यही लाइंस ओरिजिन से पास होंगे तो क्या होगा भाई, बताइए मुझे। लेट मी जस्ट ये डायग्राम भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अब बताइए क्या होगा if I'm considering these lines which are passing through origin. So what do you get there here? अगर ये लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा है तो बताइए, तो इसका इक्वेशन चेंज होगा जाएगा ना। इफ दीज आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब लेट्स से दैट ये लाइंस कुछ इस प्रकार है, ये जो लाइंस है इसको मुझे मूव करना पड़ेगा इस तरह से, ऐसे मेक देम टू पास थ्रू ओरिजिन। अरे बाबा ये क्या हो गया, ऐसे मूव करना पड़ेगा। सो दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह से वो ओरिजिन से पास हो रही है। अगर वो ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो इसमें सी नहीं होगा, यू सी, और C2 भी नहीं होगा, यू सी। तो ये होगा उसका इक्वेशन। तो व्हाट विल बी द कंबाइंड इक्वेशन, वो बताइए, इसके कंबाइंड इक्वेशंस क्या होंगे वो भी बताइए, प्लीज टेल मी। या सो व्हाट विल बी द कंबाइंड इक्वेशन, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी। सो द कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय, बोलो, कंबाइंड इक्वेशन is given by u is equal to 0, that is a1x plus b1y into a2x plus b2y is equal to 0, ठीक है। चलिए ओपन द ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स अगर ओपन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बताइए, दिस विल गिव मी इफ आई ओपन दिस, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या मिल जाएगा बताइए, यस प्लीज। इसे अगर ओपन करेंगे ऐसे ऐसे इस तरह से हो जाएगा, isn't it? What do you get there? और ये y एक्सिस है, ठीक है। सो दीज आर द पेयर ऑफ लाइंस
passing through origin. यहाँ पर हमने देखे pair of lines not passing through origin. These are the pair of lines passing through origin. Now let me open this bracket. इसको अगर मैं open करता हूँ तो क्या मिलेगा देखते हैं. Once again मुझे यहाँ पे epic pen चाहिए तो I have to pause it for a while. तो यहाँ पर if I'll open the bracket, what am I going to get there? Can you please tell me? If I'll open this bracket here like this, क्या मिलेगा मुझे? बताओ तो मुझे. What you will get there? बोलो. This will give me a1 a2 x. सही है. हेलो हेलो हेलो. ठीक है. प्लस a1 b2 xy प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर. a1 a2 x स्क्वायर होगा और b1 b2 y स्क्वायर होगा. Just look at this expression now. Look at this expression now. If you look at this expression, यहाँ पर तुम्हारा expression को हम दोबारा लिखना चाहेंगे. I'll write this as a1 a2 into x square plus a1 b2 plus b1 a2 into xy plus b1 b2 y square is equal to 0. ठीक है. Well, let me call this as a. Let me call this. ये two terms इकट्ठा हो रहा है इसके लिए मैं इसको 2h लिखूंगा. And let me call this as b. तो ये expression क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा? This is called as ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. is equal to 0. अब देखिए ये जो equation है, I'll put this in the, this is an important formula. This is the equation of pair of lines passing through origin. Pair of lines passing through origin. Joint equation of pair of lines passing through origin. Joint equation of pair of lines passing through origin. Passing through origin. Is that clear? Now we will talk about the degree of the term. What do you mean by the degree? Degree of a term. Degree is nothing but the power to which the variable is raised. Power to which the variable. Variable क्या होता है जी इसमें? इसमें variable क्या होता है? The variable is either x or y is raised. This is called as the degree of the term. तो यहाँ पर what is the degree of this term? I like to write down the degree of each term here. So the degree of this term is 2. यहाँ पर x raised to 1 and y raised to 1. तो degree of this is 1 plus 1, that is 2. x raised to 1, y raised to 1 ऐसा है. And what is the degree of y square? It is also 2. So is the degree same throughout? Yes, degree is same throughout. And ऐसा जो equation होता है जिसका degree is same throughout, all such equation as homogeneous equation. क्या कहते हैं इसको? Homogeneous. Homogeneous मतलब same throughout, isn't it? Homogeneous solution chemistry में आपने सुना होगा. So this is homogeneous equation in x and y. In x and y. So which has got the same degree throughout. X square. x y मतलब x raised to 1, y raised to 1, 1 plus 1, 2. And variable है यहाँ पर x and y. तो उस variable का जो degree है, power है, power to which this is raised is 2 and it is same throughout. इसके लिए same अगर power होता है तो हम उसको homogeneous equation in x and y कहते हैं. So यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, I would suggest you all to go to page number 114. पेज नंबर 114 अगर पर आप जाते हो, this is 112. तो यहाँ पर अगर आप जाते हो पेज नंबर 114 तो यहाँ पर आपको मिलेगा थियरम नंबर 2, द कंबाइंड इक्वेशन. क्या दिया है यहाँ पे? द कंबाइंड इक्वेशन of pair of lines passing through origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. ये यहाँ पे दिया है.
और वो मैंने वहां पे प्रूव कर लिया. दिस इज व्हाट इज गिवन देयर. ओके, क्या बोला है उन्होंने? द combined equation of pair of lines passing through origin is a homogeneous equation. Homogeneous बोले तो same degree throughout of degree 2 in x and y. Is this clear to all? Any doubts about that? ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया. ठीक है? Is that clear? Is that okay? Is that fine? Okay? अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को और मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर. अब देखिए ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है. इस इक्वेशन के लिए मैंने जो जॉइंट इक्वेशन लिए थे, जो कंबाइंड सेपरेट इक्वेशंस लिए थे, वो क्या थे? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा था a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज दे वर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. लेकिन जब हम लिखते हैं कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं इसका ax प्लस by इज इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू mx also. Y is equal to mx. So where m is the slope of this line. It's the slope of the line, isn't it? Slope of the line. तो ये इक्वेशन अगर मुझे स्लोप फॉर्म में लिखना है तो what I'll do here? If I want to write the slope of this, what will be the slope of this? The slope is given by y upon x. Slope is given by y upon x और मैं यही सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा y upon x. यहाँ पर मैं वही चीज़ सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा, isn't it? So what I'll do here is I'll divide throughout by x square. क्या मिल जाएगा देखते हैं. यहाँ पे इसको डिवाइड करिएगा थ्रू आउट बाई एक्स स्क्वायर. सो दिस इज गोना बिकम व्हाट? ये बनेगा a प्लस 2h, क्या बनेगा यहाँ पर? 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देखो ये a x स्क्वायर था ना, दिस वाज a x स्क्वायर, दिस वाज a x स्क्वायर एंड आई टोल्ड दैट आई विल बी डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर. चलिए इसको डिवाइड कीजिएगा थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर. क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड दिस बाय एक्स स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बिकम a प्लस 2h into y by x प्लस b into y by x का स्क्वायर, b into y by x का स्क्वायर is equal to 0 and here I'll substitute y by x is equal to m. y by x is equal to m लिखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a is equal to 0. और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. क्या कहेंगे इसको हम? दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्लोप. m इज द स्लोप, m इज इक्वल टू y अपॉन x. और ऊपर जो हमने देखा है that is in the form of x and y. ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. These are the two very important equations. Any doubts about this? Is this clear to all? Please tell. ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड फर्दर. तो मैं अब प्रोसीड करना चाहूँगा टू द इसके जो रूट्स है, रूट्स, these are the roots.
which are nothing but slopes of the two lines. Slopes of two lines. Well, I think with this I'll like to switch over to the exercise now. So chalo, first exercise, which is on page number 119. ये देखो, ये आ गया exercise 1.1. शुरू करते हैं इसको. Find the combined equation of the following lines. चलिए शुरू करते हैं. फाइन, इसमें से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, इजी वाले आपको लिए छोड़े जाएंगे. लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दिस. आई विल बी डूइंग द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट. तो इसमें से मैं सॉल्व करूंगा आई विल बी सॉल्विंग 4 एंड 5 और यहाँ पर 5, 6 एंड 7. बाकी का मैं आपको बाद में बता दूंगा. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, 1 में का 4 क्या दिया है. अब आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मालूम होनी ज़रूरी है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 4, 1 में का 4. क्या क्वेश्चन दिया है जी. फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस passing through this and perpendicular to this and this. These are the two lines given. These are the two lines given. Let me call it as L1 and L2. और ये इस फॉर्म में है ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है. This is the general equation of the line. 11th standard maths straight line. General equation of the line. What is the slope of this line? M is equal to, इसका slope क्या होता है. Correct, minus a upon b. So considering that, what will be the slope of this line? I'll call it as m1 is equal to minus a upon b, that is minus 3 upon 2. And what is the slope of this line? m2 is equal to minus a upon b, minus 1 upon minus 3, minus 1 upon minus 3. I hope this is clear to you all. ठीक है. लेकिन हमारे जो लाइंस है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर है. हमारी जो रिक्वायर्ड लाइंस है, याद रखिए, द रिक्वायर्ड लाइंस, रिक्वायर्ड लाइंस को मैं बोलूंगा L1 डैश जो कि L1 को परपेंडिकुलर होगा एंड L2 डैश जो कि L2 को परपेंडिकुलर होगा. समझे. इजंट इट. अगर परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है. मतलब उसका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1. इसका स्लोप अगर -3/2 है तो हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप m1 डैश इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस. नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो इट विल बी 2/3. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. प्लीज रिस्पॉन्ड एंड से यस और नो. दूसरा है m2 डैश जो कि इसको परपेंडिकुलर होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. नाउ m2 इज एक्चुअली इक्वल टू 1/3 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होगा. इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -3. और हमें वो लाइन चाहिए, हमें वो लाइन चाहिए जो passing through this point है. They are passing through 2, 3 and they are having these as the slopes. So can I write down the equations of required lines? Equations of required lines by which form? Slope point form. चलिए बताइए. स्लोप पॉइंट फॉर्म 11th स्टैंडर्ड का फॉर्म है जी ये स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो आप इक्वेशन बता सकते हो. इसी को y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ये स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है जी. इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म. ठीक है. अब इस स्लोप पॉइंट फॉर्म को अप्लाई करना है हमको. वी हैव टू अप्लाई दिस. सो मुझे पहले लाइन जो है L1 डैश उसका इक्वेशन मैं लिखूंगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू x माइनस 2 और ये होगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -3 इंटू x माइनस 2. चलिए ओपन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस विल बिकम 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 4. ओके. सो दिस विल बिकम 2x माइनस 3y प्लस 5 is equal to 0. This is y minus 3
is equal to minus 3x plus 6. So this is 3x plus y minus 9 is equal to 0. So let me call this as u is equal to 0 and this as v is equal to 0. So what will be the combined equation or joint equation? Combined or joint equation of required pair of lines is given by क्या आएगा बताइए? This will become 2x minus 3y plus 5 into 3x plus y minus 9 is equal to 0. आपको अगर चाहिए तो आप इसको ओपन कर सकते हैं. You can open this. So when you open this, ये कुछ इस प्रकार मल्टीप्लाई करेगी like this and like this. चलिए बताइए क्या बनेगा? This will become 3 2s are 6x square plus 2xy minus 9 2s are 18x. ठीक है, minus 9xy minus 3y square plus 27y plus 15x plus 5y minus 45 is equal to 0. ये मैंने ऐसे क्यों scattered क्यों लिखा है? Can you tell me what is it? Basically I have written all the like terms below each other. तो ये बन जाएगा 6x square minus 7xy minus 3y square minus 3x plus 32y minus 45 is equal to 0, and that's the answer. Any doubts about that? Is this okay? Any doubts about that? Hello? अरे समझ में आ गया क्या? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? तो ये combined equation of pair of lines which are not passing through origin, okay? That's the equation of pair of lines which are not passing through origin. चलिए, क्योंकि अगर मैं नोट दे दूं आपको, ये जो हमने इसके पहले ही देखा हुआ है वहीं पर मैं अगर एड अप कर लूं, ये तो मैंने इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन लिखा, लेकिन ये इक्वेशन मैं लेकर अगर इसको सॉल्व कर लूं, देखिए यहाँ पे इफ आई सॉल्व हियर दिस थिंग, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. देखिए इसको गौर से, ये इक्वेशंस अगर मैं सॉल्व कर लूं तो क्या मिलेगा? इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशंस हियर, चेक, इसको ओपन करता हूं मैं. I'll open this equation and open this. So let's see what you get there. बताइए क्या होगा अगर इसको ओपन करते हैं तो? ये देखिए, ये ऐसे ओपन करेगा, बताइए क्या आएगा वो? This will become a1x square, a1a2x square, a1a2x square plus a1b2xy plus a1c2x. Okay, then similarly अगर ये मल्टीप्लाई करेगा
क्या बनेगा बताइए, प्लस b1a2xy, b1a2xy प्लस b1b2y² प्लस b1c2y। ठीक है, प्लस अब तीसरा वाला ओपन करेंगे, ऐसे द थर्ड वन, इफ दिस ओपन्स, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या मिलेगा, प्लस ए c1a2x, c1a2x, c1b2y, c1b2y plus c1c2 is equal to 0. Now what I'll do is I'll write all the like terms below each other. तो ये बनेगा a1 a2x स्क्वायर, ये दो टर्म्स हो रहे हैं, प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू एक्स वाई, सही है, प्लस वाई स्क्वायर का लिखता हूँ अभी, b1 b2 वाई स्क्वायर प्लस ये लिखूंगा a1 c2 प्लस c1 a2 x प्लस y का लिखूंगा b1 c2 प्लस c1 b2 y प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, I'll call this as a, ये दो टर्म्स है तो I'll call this as 2h, I'll call this as b, ये दो टर्म है इसको मैं बोलूंगा 2g, ये दो टर्म है इसको मैं बोलूंगा 2f, और ये एक टर्म है इसको मैं बोलूंगा c। तो what will be the equation, tell me please, this will be ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ओके, ये है इक्वेशन ऑफ joint equation of pair of lines not passing through origin, not passing through origin से ये पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसे कहते हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये जो दूसरा देखा था वो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन था। होमोजीनियस और जनरल में क्या फर्क है, जनरल का देखिए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टर्म, अगर मुझे इसके डिग्रीज लिखने आए, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस टर्म, इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 1 और इसका डिग्री है 0। सो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इसलिए इसको कहेंगे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, हेलो। तो दिस इज द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है। और अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उसमें सिर्फ ये चीजें हटानी पड़ेगी, दिस इज नॉट देयर, 2gx प्लस 2fy प्लस c नहीं, सिर्फ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल, हेलो, एनी डाउट्स अबाउट दैट, समझ में आ गई ये बात, हेलो हेलो, इज दिस क्लियर टू ऑल, समझे क्या, एनी डाउट्स अबाउट दैट, नो सर। दिस इज क्लियर ना। चलिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले बता दिए हैं, मेक इट अ पॉइंट टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूले, ठीक है। और इसी टाइप का इक्वेशन देखो ये आया है, जो हमने आंसर मिला है
this is of the type ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ये आपको याद रखना पड़ेगा. You have to remember these equations. Okay, these equations आपको याद रखने पड़ेंगे. Let me go for the second question now. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 6-10 हो गए हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देन आई विल स्विच ओवर टू फिजिक्स. चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा मैं. बस दिस थिंग, एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करके देन आई विल स्विच ओवर टू फिजिक्स. चलिए शुरू करते हैं. दिस इज इक्वेशन 1 सब पार्ट 5. Find the joint equation of pair of lines passing through this. One is parallel to this and the other is perpendicular to that. हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसमें से ये इस लाइन को पैरेलल है. तो इसको मैं L1 बोलूँगा तो इसका स्लोप हो गया M1. तो क्या हो गया वो M1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, मतलब +1/3. दिस इज द स्लोप ऑफ माय फर्स्ट लाइन. और मेरा जो दूसरा लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर है. इस लाइन को मैं बोलूँगा L2 डैश. तो इसका स्लोप हो जाएगा M2 डैश जो कि होगा माइनस ए अपॉन बी. माइनस ए अपॉन बी मतलब यहाँ पर -2 अपॉन -3, दैट विल बी 2/3. तो हमारा जो लाइन है L2 वो इस L2 डैश को परपेंडिकुलर है. तो उसका स्लोप जो होगा M2 वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, मतलब दिस इज -3/2. इज दैट अंडरस्टूड? -3/2 इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है. तो अब मेरा जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? हमारे जो दोनों लाइन्स है पास हो रहा है इस पॉइंट से -1,2. एंड इट इज एक लाइन ये है स्लोप और दूसरा लाइन का स्लोप ये है, लेकिन दोनों लाइन इस पॉइंट से पास हो रहे हैं -1,2. तो व्हाट इज द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म? इसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. वेल दिस इज x1 y1 एंड ये है m. तो चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. इट बी y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x माइनस -1 दैट इज x प्लस 1. और ये इक्वेशन होगा y माइनस 2 is equal to -3/2 into x plus 1. Is that understood? So this will become 3y minus 6 is equal to minus x minus 1. So this is x plus 3y x plus 3y minus 5 is equal to 0. That is u is equal to 0. Okay. और ये हो जाएगा 2y minus 4 is equal to minus 3x minus 3. So this is 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. Let me call this as v is equal to 0. Therefore, what is the required combined equation? Required joint equation is given by u into v is equal to 0. That is x plus 3y minus 5 into 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. That is 3x square plus 2xy minus x. ये मल्टीप्लाई करेगा. So this is 3 3s are 9xy plus 6y square minus 3y minus 15x minus 10y plus 5 is equal to 0. Let me just club it all together properly. What is this going to give me? Well, that will give me 3x square plus 11xy plus 6y square minus 16x
minus 13y plus 5 is equal to 0, and that's the answer. Is this clear to you all? So these are the answers. Is this clear to you all? Okay, we stop here for